નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, શિક્ષા ભારતી ચેનલમાં તમારું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. મિત્રો, આશા રાખું છું તમે બધા ખૂબ મજામાં હશો. ચાલો ત્યારે આજે આપણે જોવાનું છે મિત્રો, ધોરણ 8માં પાઠ 6 વિષય હિન્દી. પાઠનું નામ છે ભરત. તમે લોકોએ વાંચ્યો તો હશે જ અને કદાચ રાજા ભરતની વાર્તા પણ સાંભળી હશે. અહીંયા એ જ વાતને મૂકવામાં આવેલી છે. બરાબર, આપણે જોઈશું ડિટેલ્સમાં. શરૂઆતમાં આપણે લેખકનો પરિચય જોઈશું, ત્યાર પછી આ પાઠનું ગુજરાતીમાં થોડોક સારાંશ જોઈશું અને ત્યાર પછી એનો જે સ્વાધ્યાય છે એ તરફ આપણે જઈશું. તો મિત્રો, તમને જણાવી દઉં કે હજી સુધી પણ તમે જો આ શિક્ષા ભારતી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો જલ્દીથી પહેલાં સબસ્ક્રાઈબ કરી દો, બેલ આઇકોનને પણ દબાવી દેજો અને લાઈક કરો, મિત્રો સાથે શેર કરો. તો હવે મિત્રો આપણે જોઈશું પાઠ 6. બરાબર, ચલો ત્યાં તૈયાર છો ને? તમે તમારી નોટ અને પેન લઈને બેસી જાઓ. શું કરવાનું છે મિત્રો? સ્વાધ્યાય સોલ્વ કરવાનું છે. બરાબર, ચલો ત્યારે રાજા ભરતની વાત છે. અહીંયા જે લેખક છે તેમનું નામ છે राजा लक्ष्मण सिंह. 1926 में आगरा में जन्मे राजा लक्ष्मण सिंह हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, बंगला और अरबी भाषा भली भांति जानते थे. इनकी अनेक पुस्तकों का अंग्रेजी और हिंदी में अनुवाद हुआ है. कालिदास के अभिज्ञान, शाकुंतलम, मेघदूत और रघुवंश के हिंदी अनुवाद पर इन्हें पुरस्कार दिया गया. कालिदास द्वारा लिखित मूल नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था. प्रस्तुत पाठ उसी नाटक का एक अंश है. ऋषि कण्व के आश्रम में शकुंतला का पुत्र भरत एक सिंह शावक के साथ खेल रहा है. शावक का अर्थ होता है मित्रों यहाँ पर सिंह का बच्चा. आश्रम में रहने वाली 2 तपस्विनियां बालक को रोकने का प्रयत्न कर रही है. राजा दुष्यंत छुपकर इस मनोहर दृश्य का आनंद ले रहे हैं. बालक के प्रति सहज आकर्षण से वे रोमांचित है. उनसे रहा नहीं गया और वे बालक के पास पहुंच गए. उसे गोद में उठाकर प्यार किया. वे सोचने लगे, काश यह बालक मेरा पुत्र होता. दोनों तपस्विनियों की बातचीत से उन्हें पता चला कि यह बालक उन्हीं का पुत्र है. यह जानकर वे खुशी से झूम उठे. चलिए मित्रों, अभी हम लोग देखेंगे गुजराती में इसका सारांश. इसमें 4 कैरेक्टर दिया गया हुआ है. कैरेक्टर माने पात्र, अभिनय करने वाले जो है. उसमें बालक है भरत, राजा है दुष्यंत राजा और 2 तपस्विनी है जो बच्चे की देखभाल करती है. चलिए मित्रों, अभी हम लोग गुजराती में इसका सारांश देखेंगे. કણવ ઋષિના આશ્રમનું દ્રશ્ય છે. અહીંયા આશ્રમમાં શકુંતલાનો પુત્ર ભરત એક સિંહબાળ સાથે રમી રહ્યો છે. તે તેના દાંત ગણવા માગે છે. સિંહ બાળકના દાંત ગણવા માગે છે. આશ્રમમાં રહેનારી 2 તપસ્વિનીઓ તેને અટકાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. રાજા દુષ્યંત એક વૃક્ષની પાછળ છુપાઈને આ દ્રશ્ય જોઈ રહ્યા છે. બાળક પ્રત્યે રાજા દુષ્યંતના મનમાં સ્નેહ એટલે કે પ્રેમ ઉભરાઈ આવે છે. અહીંયા એક તપસ્વીની બાળકને રમકડું આપવાની લાલચ આપીને એની પાસેથી સિંહ બાળને છોડાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. બાળક રમકડું લીધા વિના તેને છોડવા તૈયાર થતો નથી. ત્યારે તે તપસ્વીનીને બીજી તપસ્વીની આશ્રમમાંથી માટીનો મોર લાવીને બાળકને આપવાનું કહે છે. હવે અહીંયા જે દુષ્યંત છે તે બાળકને ઋષિકુમાર એમ કહીને સંબોધે છે. તો તે વખતની હવે અહીંયા થોડી ચર્ચા આપણે જોઈ લઈશું. બાળક સિંહ બાળને છોડતો નથી એટલે એક તપસ્વીની તેની પાસેથી સિંહ બાળને છોડાવવા માટે દુષ્યંતને કહે છે. દુષ્યંત બાળકને ઋષિકુમાર કહીને સંબોધિત કરે છે. દુષ્યંતના કહેવાથી બાળક સિંહ બાળને છોડી દે છે. તપસ્વીની દુષ્યંતને કહે છે કે બાળક ઋષિપુત્ર નથી પણ પુરુવંશી છે. તપસ્વીનીને આશ્ચર્ય થાય છે કે બાળકનો ચહેરો
રાજા દુષ્યંતના ચહેરા જેવો છે અને બાળકે દુષ્યંતને ઓળખ્યા વિના તેની વાત માની લીધી. અને પછી આગળ બતાવે છે પક્ષીનું અહીંયા એક પ્રકારનું સૌંદર્યની વાત કરેલી છે. તપસ્વીની બાળકને માટીનો મોર લાવીને આપે છે અને તેને તે શકુંતલ લાવણ્ય એટલે કે પક્ષીનું સૌંદર્ય જોવા માટે કહે છે. આ સાંભળીને બાળકને પોતાની માતા શકુંતલા યાદ આવે છે. રાજા દુષ્યંતને પણ પોતાની પત્ની શકુંતલાનું સ્મરણ થાય છે, જેનો તેમણે ત્યાગ કર્યો હતો. સિંહબાળને સાથે રમતી વખતે બાળકના હાથે બાંધેલો દોરો જમીન પર પડી જાય છે. દુષ્યંત તે ઉપાડી લે છે. આથી તપસ્વીનીઓને ખૂબ આશ્ચર્ય થાય છે. તેઓ કહે છે કે આ રક્ષાબંધનને બાળકના માતા પિતા સિવાય જો બીજું કોઈ લે તો તે સાપ બનીને તેને કરડે છે. આ રીતે તેથી નિશ્ચિંત થઈ જાય છે કે ભરત એટલે કે સર્વદમન નામનો તે બાળક દુષ્યંત અને શકુંતલાનો જ પુત્ર છે. તો મિત્રો અહીંયા એ જ બાબત મૂકવામાં આવી છે. આપણે આનો શોર્ટમાં થોડો સારાંશ જોયેલો. હવે આપણે જોઈશું તેનો સ્વાધ્યાય. પણ સ્વાધ્યાય જોતા પહેલાં તેના અઘરા શબ્દો પણ જોઈ લઈએ. અહીંયા શબ્દાર્થ આપેલા છે મિત્રો. તપસ્વીની यानी कि तप करने वाली स्त्री, अचंभा माने हैरानी, हठीला माने जिद्दी, सर्वदमन माने सबका दमन करने वाला, राजा दुष्यंत का पुत्र भरत. उज्जवल का अर्थ होता है चमर का हुआ या फिर स्वच्छ. चक्रवर्ती का अर्थ है सम्राट या समुद्र तक पृथ्वी को जीतने वाला. तुतले वचन माने अटपटे शब्द, ढीठ माने जिद्दी, आचरण माने व्यवहार, बड़भागी माने बड़े भाग्य वाला, कुल माने वंश, वृद्धावस्था माने बुढ़ापा, जितेंद्रिय माने जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो, नहर माने शेर सिंह, देव पितर माने देव और पूर्वज, विवाहिता माने शादीशुदा स्त्री, परदेशी माने दूसरे देश का, शकुंतल लावण्य माने मिट्टी का सौंदर्य, वृत्तांत का अर्थ होता है वर्णन या हाल, मनोरथ का अर्थ होता है मन की कामना इच्छा, ओट माने आड़ या फिर अवरोध. यहाँ मुहावरे कुछ दिए हैं, वो भी हम लोग देखेंगे. बात पर कान नहीं धरना, अनसुना करना, धोखा खा जाना, सच्ची बात को न समझ पाना या फिर मूर्ख बनना. चलिए मित्रों, अभी हम लोग देखेंगे सबसे पहले अभ्यास, फिर उसके बाद है स्वाध्याय. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. पहला प्रश्न है, इस एकांकी के आधार पर बालक सर्वदमन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए. चलिए मित्रों, इसका जवाब इस तरह से आएगा. सर्वदमन सुंदर, स्वस्थ और आकर्षक बालक है. उसका मुख अग्नि के समान दबक रहा है. उसका साहसी और निर्भय स्वभाव देखकर आश्चर्य होता है. सिंह शावक के साथ खेलने में वह जरा भी नहीं डरता. शावक की माँ सिंहनी का भी उसे डर नहीं है. वह इतना हठी है कि तपस्विनियों के समझाने का उस पर कोई असर नहीं होता. उसके हाथ में चक्रवर्ती सम्राट के लक्षण है. उसे खिलौनों से स्वाभाविक लगाव है. तो मित्रों, इस तरह से ये इसका जवाब आएगा. ये उसकी सर्वदमन की विशेषता है. अभी हम लोग दूसरा प्रश्न देखेंगे. सर्वदमन के व्यवहारों को देखकर दुष्यंत के मन में कौन कौन से विचार आते थे. तो जवाब इस तरह से आएगा मित्रों. सर्वदमन का साहस, निर्भयता और बालहट देखकर दुष्यंत बहुत आनंदित होते हैं. उनके मन में सर्वदमन के प्रति प्रेम उबड़ आता है. सर्वदमन के मुख पर अग्नि जैसी दमक देखकर उन्हें आश्चर्य होता है. उन्हें लगता है कि यह निश्चय ही किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है. बालक के हाथ में चक्रवर्तियों जैसे लक्षण और उसकी कमल जैसी हथेली देखकर वे आनंद और आश्चर्य में डूब जाते हैं. सर्वदमन के हाथ से सिंह शावक छुड़ाते समय वे बालक के हाथ का स्पर्श कर अत्यंत सुख का अनुभव करते हैं. वे सोचते हैं
कि जब उन्हें इतना सुख होता है तो जिस भाग्यवान का यह बेटा है उसे कितना सुख होगा। इस प्रकार सर्वदमन के व्यवहारों को देखकर दुष्यंत के मन में तरह तरह के विचार आते हैं। चल मित्रों, अभी हम लोग आगे का प्रश्न देखते हैं। इस एकांकी में निम्नलिखित पात्रों में अंतर्निहित मूल्य बताइए। माने इनका पात्र परिचय हमें लिखना है। एक तो है दुष्यंत और दूसरा है सर्वदमन। चलेंगे, दुष्यंत का पहले देखेंगे। राजा दुष्यंत कोमल हृदय की व्यक्ति है। बालक सर्वदमन की बाल चेष्टाएं उन्हें मुग्ध कर देती है। उसके प्रति राजा के मन में स्नेह उमड़ने लगता है। वे सोचते हैं कि यह उनका पुत्र होता तो कितना अच्छा होता। फिर ऐसी घटनाएं घटती है जिनसे सिद्ध हो जाता है कि बालक सर्वदमन उन्हीं का पुत्र है। तब दुष्यंत के आनंद की सीमा नहीं रहती। उनका पितृहृदय वात्सल्य से भर जाता है। अभी हम लोग देखेंगे मित्रों सर्वदमन के बारे में। सर्वदमन असाधारण बालक है। आश्रम की तपस्विनियां उसे सिंह शावक को छोड़ देने के लिए समझाती है, पर वह उनकी बात नहीं मानता। दुष्यंत से वह जरा भी परिचित नहीं है, फिर भी वह उनके कहने पर सिंह शावक को छोड़ देता है। उसकी सूरत भी दुष्यंत की सूरत से मिलती है। अपराजित नामक रक्षा सूत्र भी प्रमाणित कर देता है कि सर्वदमन दुष्यंत का ही पुत्र है। इस प्रकार पिता और पुत्र दोनों एक दूसरे से अनजान है, फिर भी उनके बीच पिता पुत्र जैसी भावधारा बहने लगती है मित्रों। ठीक है, चलिए अभी हम लोग आगे का प्रश्न देखते हैं। यहाँ दिया गया हुआ है कि इस परिच्छेद को ध्यान पूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए मित्रों, सबसे पहले हम लोग यह परिच्छेद पढ़ेंगे, उसके बाद उसके प्रश्न देखते हैं। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार एक अच्छा जंगल जैविक भंडारघर होता है। यह हजारों प्रजातियों के पौधों को उगा कर रखता है जो बाद में चलकर बहुमूल्य हो जाते हैं। अगर हम जंगल को एक सीमा से भी ज्यादा छांटते हैं या खत्म करते हैं तो वे चीजें भी नष्ट हो जाती है जिनकी हमें कभी भी बहुत जरूरत हो सकती है। वह एक संभावित पौधा, खाने की औषधीय वस्तु या कोई उपयोगी चीज बनाने में इस्तेमाल होने वाली कोई जरूरी वस्तु में से कुछ भी हो सकता है। चलिए मित्रों, तो यहाँ पर हमें जो दिया गया हुआ है वह क्या है, हमें जंगल का नाश नहीं करना चाहिए, उसी के बारे में हमें दिया गया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग पहला प्रश्न देखेंगे। एक एक प्रश्न जैसे जैसे देखते जाएंगे वैसे वैसे इस परिच्छेद में जो कहा गया हुआ है वह भी हमें समझ में आ जाएगा। चलिए, एक अच्छा जंगल क्या कहलाता है? इसका उत्तर आएगा मित्रों, एक अच्छा जंगल जैविक भंडारघर कहलाता है। अभी दूसरा प्रश्न देखेंगे। जंगल को ज्यादा छाटने या खत्म करने से क्या नुकसान होता है? तो उत्तर यह आएगा मित्रों, जंगल को ज्यादा छाटने या खत्म करने से अत्यंत उपयोगी और जरूरत के समय काम आने वाली बहुमूल्य वस्तुएं नष्ट हो जाती है। अभी तीसरा प्रश्न है यहाँ पर मित्रों, इस परिच्छेद का उचित शीर्षक दीजिए। शीर्षक माने हेडिंग। मेरे मुताबिक यह शीर्षक मुझे अच्छा लगता है कि जंगल की सुरक्षा ही हमारी सुरक्षा है, या फिर जंगल की सुरक्षा हमारा कर्तव्य, जंगल ही भंडार घर है। चलिए मित्रों, इस तरह से हम कोई भी शीर्षक दे सकते हैं। अभी हम लोग देखेंगे मित्रों, पर्यायवाची लिखिए। पर्यायवाची का अर्थ होता है समानार्थी। पर्यायवाची का शब्द में पहले जो दिया गया हुआ है उसमें है जंगल, माने वन होगा। घर का अर्थ होता है यहाँ पर गृह या आवास। बहुत का अर्थ होता है अधिक। उसके बाद है इस परिच्छेद आधारित 2 सवाल बनाइए। तो चलिए
एक सवाल यह है कि जंगलों की सुरक्षा क्यों आवश्यक है, और दूसरा प्रश्न यह होगा जंगल हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अभी हम लोग देखेंगे सोच अपनी अपनी। आगे का प्रश्न, आपको कौन सा टीवी प्रोग्राम अच्छा लगता है, क्यों? 10-15 वाक्यों में वर्णन कीजिए। जो मुझे अच्छा लगता है मैंने उसी को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया हुआ है। बच्चे लोग, आप लोगों को जो अच्छा लगता है टीवी प्रोग्राम, उसके बारे में आप लिख सकते हैं। आजकल टीवी के विविध चैनलों पर कई प्रोग्राम दिखाई जाते हैं। सीआईडी, क्राइम पेट्रोल, रसोई शो, समाचार, डिस्कवरी, जियोग्राफी चैनल आदि प्रोग्राम बहुत लोकप्रिय है। इन प्रोग्रामों में से मुझे सबसे अच्छा लगता है डिस्कवरी। उसमें अनेक प्राणियों की विशेषताएं दिखाई देती है, लाक्षणिकताएं दिखाई देती है, उनका जीवन व्यवहार दिखाई देता है, और हमारी जो प्रकृति है वह अनेक जीवों से भरी हुई है। नए नए जीव का हमें ज्ञान मिलता है। कौन सा जीव पानी में रहता है, कौन सा जीव आसमान में रहता है, कौन सा मिट्टी में रहता है। अनेक प्रकार के जीवों का हमें परिचय होता है, और डिस्कवरी देखने से हमारा ज्ञान भी बढ़ता है। इसलिए मित्रों, मुझे डिस्कवरी देखना बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद दूसरा जो एक है जियोग्राफी चैनल, उसमें भी हमें बहुत सारे दुनिया भर के जितनी भी विशेषताएं हैं दुनिया में, जानकारी हम कर सकते हैं। जो जान सकते हैं उसके बारे में अनेक प्रकार की विशेषताएं हमें उसमें बताई जाती है, और हमारा उससे ज्ञान भी बढ़ता है। तो इसलिए मुझे एक तो जियोग्राफी चैनल और डिस्कवरी चैनल, ये दोनों ही मुझे बहुत ही पसंद है। इस सीरियल में दिखाई जाने वाली सभी प्रकार की जो घटनाएं हैं वह बहुत ही रुचिपूर्ण है, बहुत इंटरेस्टेड है, और इससे हमारा नॉलेज भी बढ़ता है। उससे हमें मनोरंजन भी मिलता है और शिक्षाप्रद भी है। ठीक है मित्रों, चलिए अभी हम लोग देखेंगे, कक्षा में पढ़ाई कर रहे हो और धरती कंप आ जाए तो आप क्या करेंगे। तो चलिए मित्रों, कक्षा में पढ़ाई करते समय यदि धरती कंप आ जाए तो मैं खड़ी होकर जोर से चिल्लाऊंगी, भागो भागो, जल्दी बाहर निकल जाओ, धरती कंप आया है। और ऐसा चिल्लाते हुए साथियों के साथ मैं शाला भवन से बाहर आ जाऊंगी। चलिए मित्रों, अभी हमें स्वाध्याय की ओर देखना है। ऋषियों ने बालक का नाम सर्वदमन क्यों रखा? तो इसका उत्तर यह आएगा मित्रों, बालक वन के पशुओं के बच्चों के साथ निडर होकर खेलता था। उसके इसी साहसी और निर्भीक स्वभाव के कारण ऋषियों ने उसका नाम सर्वदमन रखा था। चलिए मित्रों, अभी हम लोग देखेंगे दूसरा प्रश्न। दुष्यंत बालक के प्रति क्यों आकृष्ट हो रहे हैं? तो जवाब में यह आएगा मित्रों, बालक स्वस्थ, सुंदर, निर्भीक तथा हठीला था। उसकी इन्हीं विशेषताओं पर मुग्ध होकर दुष्यंत उसके प्रति आकृष्ट हो रहे थे। ठीक है, अभी तीसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे मित्रों। दुष्यंत ने पूर्ववंशीय जीवन की कौन सी 2 रीतियां बताई है? तो देखिए मित्रों, पहली तो यह है, वे युवावस्था में महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं, और दूसरा है, वृद्धावस्था में वे तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। अभी मित्रों, यहाँ पर हमें एक चित्र दिया गया हुआ है, और उसी के आधार से हमें एक कहानी बना करके लिखनी है। चित्रों का अवलोकन करके अपने शब्दों में कहानी लिखिए। तो चलिए मित्रों, मैं कोशिश करती हूँ यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर जो चित्र दिया गया हुआ है
तो यहाँ पर जो है एक लकड़हारा दिखाई दे रहा है हमें, पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ है और पेड़ काट रहा है। उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी है। तो हम लोग शुरुआत करेंगे इस तरह से। एक लकड़हारा था, वह रोज जंगल में जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में बेच देता था। इन पैसों से ही उसके परिवार का गुजारा होता था। एक दिन लकड़हारा एक पेड़ पर चढ़कर उसकी एक डाल काट रहा था। पेड़ नदी के किनारे था। अचानक उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूट गई और नीचे नदी में जा गिरी। लकड़हारा पेड़ से उतरा, पर उसे तैरना नहीं आता था, अतः उदास होकर वहीं बैठ गया। संयोग से एक देवदूत वहां से गुजरा। उसकी दृष्टि लकड़हारे पर पड़ी। उसने लकड़हारे से उसकी उदासी का कारण पूछा। लकड़हारे ने उसे नदी में अपनी कुल्हाड़ी गिरने की बात बताई। देवदूत ने कहा, तुम घबराओ मत, मैं नदी से तुम्हारी कुल्हाड़ी निकाल दूंगा। देवदूत ने पहले एक सोने की कुल्हाड़ी निकाली और पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारे ने कहा, नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। तब देवदूत ने चांदी की कुल्हाड़ी निकाली। लकड़हारे ने कहा, यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। अंत में देवदूत ने लोहे की कुल्हाड़ी निकाली। उसे देखकर लकड़हारा खुशी से चिल्ला उठा, हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। देवदूत लकड़हारे की ईमानदारी पर बहुत खुश हुआ। उसने सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी लकड़हारे को इनाम के रूप में दे दी। मित्रों, यहाँ पर जो शीर्षक आएगा वह होगा कि एक तो है लकड़हारा और देवदूत, उसके अलावा यह भी शीर्षक हम लोग लिख सकते हैं कि लकड़हारे की ईमानदारी। ठीक है मित्रों, तो चलिए यहाँ पर जो है आपका स्वाध्याय और अभ्यास दोनों ही पूर्ण होता है। इसी तरह से ही आपके लिए जो है मित्रों वीडियो बन रहा है और भी चैप्टर्स आ रहे हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो जाएगा तो आपको तुरंत ही उसका पता लग जाए। ठीक है मित्रों, चलिए, नमस्ते विद्यार्थी मित्रों।